وزیر اعلیٰ مریم نواز شاہدرہ کے مقام پر پہنچ گئی ہیں، سیلابی صورتحال کا جائزہ لے رہی ہیں اور ہدایات بھی دیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شاہدرہ کے مقام پر پہنچ گئی ہیں اور سیلابی صورتحال کا جائزہ لے رہی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شاہدرہ کے مقام پر پہنچ گئی ہیں اور سیلابی صورتحال کا جائزہ لے رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شاہدرہ کے مقام پر پہنچ گئی ہیں اور سیلابی صورتحال کا جائزہ لے رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شاہدرہ کے مقام پر پہنچ گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے شاہدرہ کے مقام پر وزٹ کیا گیا ہے اور وہاں کے حالات کا ان کی جانب سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تمام اداروں کو الرٹ کیا گیا ہے، تمام ادارے اس وقت متحرک ہیں۔ آج صبح وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ درہ راوی کا فضائی دورہ کیا گیا تھا، ساتھ ہی ساتھ جو چیئرمین NDMA ہیں ان کی جانب سے بریف کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ناروال کا دورہ کیا گیا، وہاں پر جو بھی آبادیاں زیر آب آئی ہیں، جو بھی لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کا دورہ کیا گیا ہے، ان کی داد رسی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں وہاں کا بھی دورہ کیا جا رہا ہے اور جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں ان کی فراہمی یقینی بنانے کے حوالے سے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں اور اب وہ شاہدرہ کے مقام پر پہنچی ہیں، جہاں پر ان کی جانب سے جو درہ راوی کی ہے اس کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سے جو تمام تر ادارے ہیں ان کو ہدایات جاری کی گئی ہیں، لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے حوالے سے جو انتظامات کیے گئے ہیں ان کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے عوام سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ دریا کنارے سے دور رہیں اور اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں اور جو محفوظ مقامات ہیں وہاں پر منتقل ہونے میں جو ریسکیو ادارے کام کر رہے ہیں ان سے تعاون کیا جائے۔ یہ وہ مناظر ہیں جب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شاہدرہ کے مقام پر پہنچی تھیں اور انہیں جو درہ راوی ہے اس پر پانی کی آمد کتنی ہے، اخراج کتنا ہے، کتنا خدا نخواستہ نقصان ہو سکتا ہے، اس حوالے سے بریف کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی ادارے ہیں وہ الرٹ ہیں اور انہیں متحد ہو کر تمام تر ریسکیو آپریشنز کو یقینی بنانے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ پنجاب کے جتنے بھی دریا ہیں ان میں طغیانی آ چکی ہے اور پانی کا جو بہاؤ ہے وہ تیز ہوتا جا رہا ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے، اس سے جو نقصانات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے جو بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بریف کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ رات بھی ان کی جانب سے دریا کا دورہ کیا گیا تھا اور جتنے بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے انہیں بریف کیا گیا تھا اور آج بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ آج ان کی جانب سے ناروال کا دورہ کیا گیا ہے، دریائے راوی کی موجودہ صورتحال کا فضائی معائنہ کیا گیا اور چیئرمین NDMA کی جانب سے انہیں بریف کیا گیا تھا کہ اس وقت موجودہ دریاؤں کی صورتحال کیا ہے، پانی کی آمد کتنی ہے، پانی کا اخراج کتنا ہے اور اب تک کتنے دیہات متاثر ہو چکے، وہاں کے جو مکین ہیں انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے حوالے سے اب تک کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں، کتنے ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے صوبائی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی جانب سے بھی میڈیا بریفنگ دی گئی اور ان کی جانب سے بتایا گیا کہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کے لیے تمام تر اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں، لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب جو مویشی ہیں انہیں بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے اور جو لوگ ریلیف کیمپس میں موجود ہیں انہیں تمام تر ضروریات زندگی جو ہیں، کھانے پینے کی اشیاء اور جو ادویات ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں، میڈیکل کیمپس قائم کیے جا رہے ہیں، ریسکیو 1122 ہو، فوج کا ادارہ ہو، NDMA ہو، PDMA ہو، تمام تر ادارے اس وقت متحرک ہیں اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے حوالے سے تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تمام تر اسسٹنٹ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، پولیس کے افسران، پولیس کے جوان، پاک فوج کے جوان، ریسکیو 1122 کے جوان اور افسران، تمام تر جو لوگ ہیں اس وقت متحرک ہیں اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے حوالے سے تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ادویات کی فراہمی ہے ان کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ریلیف کیمپس کے ساتھ ساتھ جو میڈیکل کیمپس ہیں وہ بھی منعقد کیے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ عوام سے بھی اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ خود کو محفوظ مقامات پر رکھیں، خود کو دریا کناروں سے دور رکھیں اور دریا کے جو بیٹ ہے اس سے خود کو دور رکھیں اور انتظامیہ سے تعاون کریں تاکہ انتظامیہ ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے وجہ سے جو بھی اقدامات ہیں وہ یقینی بنائیں۔ اور یہ وہ مناظر ہیں جب خود دریا کنارے جا کے شاہدرہ کے مقام پر جا کے دریائے راوی کا جو موجودہ صورتحال ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے معائنہ کیا گیا ہے۔ ایک بڑا ریلا جو کہ گزشتہ رات دریائے راوی شاہدرہ کے مقام سے گزرا ہے اور اب چونکہ صورتحال کچھ بہتر ہے اور عوام سے بھی اپیل کی گئی تھی کہ دریا کناروں سے دور رہیں۔ اس کے علاوہ ناروال کا بھی آج دورہ کیا گیا تھا
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से। और जितने भी दरिया चिनाब हो, दरिया रावी हो, दरिया सतलुज हो, उसके आसपास की जो आबादियाँ हैं जो मुतासर हुई हैं, वहाँ से लोगों को यकीनी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के हवाले से जो भी इक़दामात उठाए जा रहे हैं वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से सराहा गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से लाइफ जैकेट पहनकर कश्ती में बैठकर इलाके का मुआयना किया गया है और सीनियर वज़ीर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब भी उनके हमरा मौजूद हैं। इसके अलावा रेस्क्यू के एहलकार भी उनके हमरा मौजूद हैं और उन्हें शाहदारा की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, वहाँ पर पानी का बहाव कितना है, पानी की आमद कितनी है, पानी का इखराज कितना है, उस हवाले से उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है और तमाम तर सूरत हाल से उन्हें आगाह किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से भी कल शाम के वक्त इस इलाके का दौरा किया गया था और पानी की मौजूदा सूरत हाल का उनकी जानिब से जायज़ा लिया गया था। और आज भी सुबह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमरा उनकी जानिब से दरिया रावी का फ़ज़ाई मुआयना किया गया। इसके साथ साथ नारोवाल का दौरा किया गया है, वहाँ करतारपुर में जो पानी 7 फीट तक जमा है उस एरिया का भी दौरा किया गया है। और तमाम तर इदारे में रेस्क्यू 1122 है, NDMA है, PDMA है, इसके अलावा पाक फ़ौज के इदारे भी इस वक्त मुतहरिक हैं। तमाम तर इदारे मिलकर इस सिचुएशन से निमट रहे हैं और साथ साथ वज़ीर आला पंजाब हों या दीगर अफसरान और हुकूमती जो नुमाइंदगान हैं उन्हें इस हवाले से ब्रीफ किया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की जानिब से कहा गया कि तमाम MPAs और MNAs अपने अपने एरियाज़ में मुतहरिक हैं, वहाँ जाके ख़ुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो भी इक़दामात उठाए जा रहे हैं, जो भी इंतज़ामात किए जा रहे हैं वो उन्हें उस हवाले से ब्रीफिंग किया जा रहा है और वो ख़ुद इन इंतज़ामात का मुआयना भी कर रहे हैं। और साथ साथ आवाम से अपील की जा रही है कि रेस्क्यू इदारे उनकी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जो इक़दामात उठा रहे हैं उनका साथ दिया जाए और ताउन किया जाए, उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है और ताउन किया जाए। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर लोग अपने घरों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं, लेकिन उनकी जानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए जो भी इक़दामात किए जा रहे हैं उनके साथ ताउन किया जाए। शाहदारा का मकाम है दरिया रावी में, जहाँ पर अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ पहुँची थी और लाइफ जैकेट पहनकर उनकी जानिब से कश्ती में बैठकर वहाँ का मुआयना किया गया। पानी के बहाव और फिर इखराज के हवाले से उन्हें ब्रीफ किया गया है और उनकी जानिब से तमाम तर इदारों को मुतारिक रहने, आवाम के जान माल को यकीनी बनाने के हवाले से, इक़दामात उठाने के हवाले से उनकी जानिब से ज़ोर दिया गया है, हिदायत की गई हैं। और इसके अलावा आप ये फुटेज मुलाहिज़ा कर सकते हैं जब वो ख़ुद लाइफ जैकेट पहनकर रेस्क्यू 1122 के साथ दरिया में पहुँची हैं और वहाँ का उनकी जानिब से मुआयना किया गया है और उनकी जानिब से वहाँ के इलाके में जो इलाका मकीन हैं उनसे भी गुजारिश की गई है कि वो दरिया किनारे से दूर रहें। अगले चंद दिन इंतहाई अहम हैं और जब तक ये हालात मामूल पर नहीं आते एहतियात बरतना ज़रूरी है, ये उनकी जानिब से हिदायत की गई हैं। दरिया सतलुज, रावी और दरिया चिनाब में इस वक्त तुग़यानी की सूरत हाल है और अगर नालों की बात की जाए तो नाला डैक, नाला बई, नाला एक, वो भी उनमें भी तुग़यानी आ चुकी है और बेशतर मकामात ऐसे हैं जहां पर बंद तोड़े जा रहे हैं, हिफाजती बंद तोड़े जा रहे हैं ताकि जो गैर आबाद आबादियाँ हैं पानी वहाँ पर जाए और जो मेन मराला हैं उन्हें बचा लिया जाए। गुज़श्ता रोज़ भी हेड मराला को बचाने के लिए हेड कायदाबाद को उड़ा दिया गया था और उसके आसपास जो गैर आबाद आबादियाँ हैं वहाँ पर पानी की तरसील को यकीनी बनाया गया था ताकि पानी का लेवल नीचे आ सके और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। सियालकोट की बात की जाए तो वहाँ पर अब तक जो सियालकोट का एरिया है वहाँ पर गुज़श्ता रोज़ जो बारिशें हुई थी उसके अलावा जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी उसके बाद अब तक 12 अफराद जो हैं वो पानी की नज़र हो चुके हैं, 2 की लाशें अब तक निकाली जा चुकी हैं और बाकियों को ढूंढने के हवाले से भी रेस्क्यू जो इंतज़ामात कर रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ शाहदरा के मकाम पर पहुँच गई हैं और सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा ले रही हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब भी वज़ीर आला के हमरा मौजूद हैं। कुछ देर कबल भी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा फ़ज़ाई दौरे पर थी और सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा ले रही थी। चेयरमैन PDMA ने उन्हें ब्रीफिंग दी थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ का सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा ले रही हैं और उनके हमरा सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब भी मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब का कश्ती में दरिया रावी का दौरा, सीनियर सूबाई
सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आला के हमरा मौजूद हैं। कुछ देर कबल भी वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म के हमरा फ़ज़ाई दौरे पर थीं और सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा ले रही थीं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ मुसलसल सैलाबी सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए खुद फील्ड में मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ शाहदरा पहुँच गई हैं और दरियाए रावी के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा ले रही हैं। उनके हमरा सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद हैं जो उनके हमरा सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा ले रही हैं। कुछ देर कबल भी वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म के हमरा फ़ज़ाई दौरे पर थीं और सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा ले रही थीं। हमारे नुमाइंदा लाहौर उस्मान अली हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जानेंगे। उस्मान, आगाह कीजिएगा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ खुद पहुँची हैं शाहदरा के मकाम पर और मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा ले रही हैं। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो यहाँ पर शाहदरा के मुकाम पर आई और सैलाबी सूरत हाल का जो है वो उन्होंने जायजा लिया। इस वक्त भी वो कश्ती में बैठकर जो है वो दरिया के अंदर मौजूद थी, जहाँ पर उन्होंने दरिया में सैलाबी जो सूरत हाल है, पानी का बहाव है, उस वाले से जो इंतजामिया की तरफ से इक़दाम किए गए हैं, रेस्क्यू 112 केवल डिफेंस समेत जो दीगर इदारे हैं उनकी तरफ से जो इक़दाम किए गए हैं उनका जायजा लिया, पानी के बहाव का जायजा लिया। इस वाले से उन्होंने जितने भी यहाँ पर इक़दाम किए गए उनका भी ये जायजा लिया, जबकि उनके साथ जो सीनियर सूबाई वज़ीर पीर मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर सूबाई वज़ीर इत्तलाआत तो उस्मा बुखारी, जबकि वफाकी वज़ीर अब्दुल हलीम खान वो भी उनके साथ मौजूद हैं वो भी यहाँ पर उनके साथ जो हैं वो तो इस वक्त जायजा ले रही हैं और यहाँ पर जितने भी इक़दाम किए गए हैं उनका तफसीली जो है वो जायजा लिया जा रहा है। जबकि जो इंतजामिया है जिसमें चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर समेत जो दीगर सरकारी एहलकार हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और उनको सैलाब के हवाले से किए गए इंतजाम और जो जितने भी यहाँ पर हंगामी इक़दाम किए गए हैं उनके हवाले से उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं। जी अच्छा उस्मान, ये भी आगाह कीजिएगा, अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला पंजाब की जानिब से वज़ीर आज़म के हमरा दरियाए रावी का फ़ज़ाई मुआयना किया गया था, साथ ही नारोवाल का भी दौरा किया गया था। इस दौरान उन्हें क्या ब्रीफ किया गया था? जी बिल्कुल, उनके जानिब से जो वज़ीर आज़म के साथ जो उनका दौरा था वहाँ पर भी उनको दरिया खास करके दरिया रावी के हवाले से जो था नारोवाल में होने वाले नुकसानात और उसके अलावा दरिया रावी का पानी में जो पानी की वजह से जो मुख्तलिफ नुकसानात हुए